Students, welcome back to the session of class 8th math subject. Dear students, today we will start our next chapter. This is square and square root. ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਗ ਮੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ x ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਮੂਲ ਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ डिटेल विच करांगे ਜਦੋਂ ਇਹ टॉपिक आएगा। दो पार्ट विच डिवाइड है ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਗ ਮੂਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਗਮੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੁਅਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕੁਅਰ। ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 बार ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 30 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ 30 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਟ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1 ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 3 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਤੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 36, 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 49, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64, 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 81, 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 100, 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 121, 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 144, 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 169, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ 196, 225 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ 256 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 289 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ, 18 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ 324, 19 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 361, 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 400, 21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ 441, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 484, 23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 529। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ 576, 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 625 ਹੈ, 26 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 676 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 27 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 729, 28 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 784, 29 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 841 ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 900। ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ 841, 30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 900। तो इदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਆਓ ਬੱਚੋ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਸਕੁਅਰ ਕੱਢੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 9 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। तो ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ
किसी भी नंबर का स्केयर हमेशा स्केयर जिहड़ा है हमेशा किहदे नाल एंड करता है, जां तां 0 नाल, जां 1 नाल, जां 4 नाल, जां 5 नाल, जां 6 नाल ते जां फिर 9 नाल। ठीक है, तो ये नंबर ने बाकी ये डिजिट ने जिन्हां नाल एंड करेगा। तो बाकी जिहड़े किहड़े नहीं हैगे वो किहड़े किहड़े आ विचों 2, ठीक है 2 हो गया, फिर उस तो बाद 3 हो गया, उस तो बाद विचों 7 हो गया ते उस तो बाद 8। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ये डिजिट ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ भी मतलब स्केयर तुसी किसी भी संख्या का कढोगे उन्हां विच कदी भी वंस प्लेस ते ये डिजिट नहीं आउणगे, हमेशा किहड़े डिजिट आउणगे 0 1 4 5 6 एंड 9। ठीक है, ये तुहाडे दिमाग विच बैठ जाना चाहिए है। ठीक है, 0 1 4 5 6 एंड 9 विल कम इन ए स्केयर ऑफ एनी नंबर एट वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस से हमेशा 0 1 4 5 6 9 जिहड़े आ वो डिजिट आंदे ने। 4 2 3 7 9 नाल कदी भी वो नंबर किसी नंबर का जो स्केयर कढोगे एंड नहीं करेगा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन हैगा, नैक्सट प्रॉपर्टी है सैकेंड प्रॉपर्टी दे विच हैगा कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ स्केयर ऑफ नंबर इज ऑलवेज ईवन। ਇਹਦਾ मतलब की है प्यारे विद्यार्थियों, असी कोई संख्या लेंदे हाँ जिद्दां कि 10। ठीक है, तो 10 का जेकर तुसीं स्केयर करोगे मतलब 10 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो वो विचों 100 आएगा। ठीक है, इदां ही जेकर तुसीं 100 का स्केयर करते हो तो इसका मतलब की है 100 इंटू 100। तो इत्थे 1 2 3 4 इत्थे कितनियां जीरो आ रही देखो 4, इत्थे कितनियां आ रही 2। ठीक है, इदां ही तुसीं 1000 का स्केयर कर लो, 1000 का स्केयर करोगे 1000 नूं 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इत्थे 1000 है, 1000 नूं 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल 6 जीरोस आ जाणगियां। तो तुसीं देख सकते हो ये जीरोस हमेशा कितनियां ने ईवन आ रही। इत्थे ईवन का मतलब है जिस्त। ठीक है, तो किसी भी संख्या कोई भी तुहाडे कोल नंबर दिता है उस नंबर का जिहदे विच अगर उस नंबर का स्केयर करते हो तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा कितनियां डबल होंदियां ने, यानी कि ईवन होणगियां। ठीक है, ईवन डबल नहीं कहता, ईवन होंगे। ईवन का मतलब जिस संख्या होएगी 2 4 6 इस तरीके नाल। ठीक है, यदि होर भी किसी भी नंबर का तुसीं अगर मान लो मैं 20 का ही करदा। ठीक है, ये नहीं कि 10 ये वाली लाइन है 20 का भी हो सकता है। 20 इंटू 20 करूंगे तो कितना आंसर आएगा देखो 400। तो 400 विच कितनियां जीरो आ रही 2। ठीक है, तो हमेशा कितनियां होणगियां जिस नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि ईवन नंबर ऑफ जीरोस कह सकते हैं आप। ठीक है, ईवन नंबर ऑफ जीरो विल कम इन ए स्केयर ऑफ एनी नंबर जिहड़ा कि जिहदे विच मान लो एंडिंग जिहड़ी आ जीरो नाल है। ठीक है, कोई मतलब कि नंबर असीं ये नहीं कह सकते, चलो कोई भी नंबर हो सकता, वैसे जनरली यही हुंदा कि वंस प्लेस ते उस नंबर ते भी जीरो हुंदा जिहदा आपां स्केयर कढदे आ, फिर वो चो जीरो डबल हो जांदियां। ओके, कितनियां हो जांदियां डबल जिदा 1 सीगी तो 2 हो गई, देखो 2 सीगियां तो 4 हो गई, 3 सीगियां तो 6 हो गई, इत्थे 1 सी तो 2 हो गई। ठीक है, तो इदा पैटर्न चलदा, वो पैटर्न तुसीं समझना है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सैकेंड प्रॉपर्टी समझ गए। उस बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ गई स्केयर ऑफ ए ईवन नंबर इज ऑलवेज ईवन। लो बच्चों, ਇਹਦਾ मतलब की होया, मैं एक एग्जांपल है ईवन नंबर का मतलब सारे बच्चों को पता होएगा जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जिस्त संख्या की कहने जिस्त संख्या। तो जिस्त संख्या साडे को केड़ी है, देखो जिस्त संख्या हैगी 4, तो 4 दी 4 नाल गुणा करूंगे तो की आंसर आया 16। तो 16 की है वो भी एक जिस्त है, यानी कि वो भी एक ईवन नंबर है। ठीक है, इदां ही साडे को कोई भी नंबर ले लो तुसीं 24 आ, 24 का स्केयर करोगे तो वो कितना आ जाना देखो वो आएगा, असीं हुणे पिछे करके आए हैं 576। 24 का स्केयर का मतलब की है 24 नूं 24 दे नाल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कितना आंसर आया 576, जो कि एक ही है ईवन नंबर। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि हमेशा ईवन नंबर का स्केयर की हुंदा है एक ईवन नंबर ही होवेगा। ओके, यानी कि जिस्त संख्या का वर्ग हमेशा जिस्त ही हुंदा है। ओके, उस तो बाद अगली प्रॉपर्टी हुण इहदा ऑपोजिट कर लो, जिस्त तो बाद ऑड ले लो। ते ऑड का की होएगा, ऑड विच आपां एग्जांपल 1 ले ली, तो 1 का स्केयर की है 1 इंटू 1 किहदे बराबर है देखो 1 दे, इहदे 3 आ, 3 का स्केयर कितना आ गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, होर ऑड नंबर कोई भी मान लो जिद्दां साडे कोल मान लो 9 ही है, 9 का वर्ग तुसीं कढोगे तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। तो सारियां विच देखो इत्थे वंस प्लेस ते की है ऑड नंबर आ रहे हैं, ऑड डिजिट आ। तो ऑड डिजिट का मतलब ये होगा कि किसी भी ऑड संख्या का, ऑड का मतलब जिस्त संख्या का वर्ग हमेशा जिस्त संख्या ही होवेगी, जिस्त नंबर ही होवेगा। ओके, सो नेक्स्ट हैगा फिफ्थ प्रॉपर्टी वंस डिजिट ऑफ
वंस डिजिट ऑफ स्केयर ऑफ ए नंबर। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब की है, ये प्रॉपर्टी नंबर है बच्चों साढ़े को 5। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी है कि संख्या के वर्ग विच इकाई दे स्थान का अंक, यानी कि वंस डिजिट की होएगा स्केयर ऑफ ए नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आपां की है एक मतलब कि पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो संख्या विच इकाई अंक 1 है ਜਾਂ फिर 9 है। ध्यान नाल मेरी गल समझियो, 1 है इकाई अंक ਜਾਂ फिर 9 है। चलो मैं इहनूं थोड़ा जिहा तुहानूं प्रॉपर्टी ना कराना ताकि तुहानूं पता हो जाए किद्दां करना किद्दां है। ठीक है, तो फिर तुसीं आराम नाल कर सकदे, फिर कोई इशू नहीं आएगा। पहला असीं एक प्रॉपर्टी करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लैना, मान लो साडे कोल है वैल्यू 25। ठीक है, तो 25 ਦੇ वर्ग विच उदां दे तुहानूं पता 25 ਦਾ वर्ग की हुंदा है, 25 ਦਾ स्केयर जिहड़ा है 625 होएगा। तो ਇਹਦਾ देखो वंस डिजिट की हैगा, वंस डिजिट है 5। ठीक है, इदां ही साडे कोल मान लो हुण कोई होर एग्जांपल ले लैने 40 है, तो 40 ਦਾ वर्ग की आना 40 × 40 = 1600। तो ਇਹਦਾ वंस डिजिट की है 0। ठीक है, 0 हो गया। ओके, हुण तुसीं फाइंड किद्दां करना, तुहानूं एक क्वेश्चन आ गया कि संख्या हैगी साडे कोल 2 5 6 7 8 8 7 9 एडी वड्डी संख्या है जी। तो तुहानूं ये पूछ लिया कि जेकर तुसीं इस संख्या दा, इस नंबर दा स्केयर करोगे, इस नंबर दा की करोगे, स्केयर करोगे, तो स्केयर करन ते जिहड़ी लास्ट विच वंस प्लेस होएगी, जिहनूं आपां चलो हुंदी तां पहली प्लेस है ना वंस प्लेस, तो नंबर आपां चलो इधरों लिखना शुरू करीदा। तो ये वाला प्लेस ते जिहड़ा अंक होएगा वो की होएगा, वंस प्लेस ते डिजिट किहड़ा होएगा, ਉਹਦਾ बहुत ही सौखा तरीका है। ध्यान नाल समझिओ, ਉਹਦਾ करना कि तुसीं जिहड़ा नंबर दिता है उस नंबर दा ही वंस प्लेस देख लेना। वो की है इत्थे 9, तो 9 दा वर्ग कर देना, वो कितना है 81। ਇਹਦਾ मतलब इस पूरी संख्या के वर्ग के पिछे सब तो एंड विच 1 आएगा जी। ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। तो ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ 2 5 6 7 8। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 25678। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ 8 ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੰਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੰਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ 8 ਨੂੰ 8 ਦਾ ਕੀ ਕਰ देना वर्ग। तो वर्ग करके कितना है 8 8 64। तो ये वंस प्लेस से की आ रहा 4। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ वर्ग करोगे ਉਹਦੇ आंसर ਵਿੱਚ लास्ट ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 4। क्लीयर होना। ठीक है, तो ਇਹਦਾ कोई भी किन्नी भी ਵੱਡੀ संख्या ਹੋਵੇ, कोई भी नंबर ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ फटाफट ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ वंस प्लेस से ਕਿਹੜਾ डिजिट आना, प्रोवाइडेड कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ वर्ग ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, क्योंकि ਆਪਾਂ वंस ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ वंस ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਕੁਅਰ, वंस प्लेस ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ, कोई डाउट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। हो ये हैगा बच्चों कि अगर सपोज करो तुहानू कोई भी गिवन नंबर है, ठीक है, उस नंबर दी वंस डिजिट जिहड़ा है, उस नंबर दा वंस डिजिट जिहड़ा है वो कितना है, जां तां 1 है, ठीक है, और 9, 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 है तां प्यारे विद्यार्थियों जिहड़ा स्केयर होएगा, ठीक है, उस स्केयर दा वंस डिजिट जिहड़ा है यानी कि दैट विल एंड विद, ठीक है, दैट स्केयर नंबर विल एंड विद किहदे नाल होएगा 1 नाल। क्यों, क्योंकि 1 × 1 कितना हो गया 1 ही हुंदा, 9 × 1 9 × 9 कितना हुंदा 81। तो 81 च भी 1 ही आ रहा। ठीक है, अगली गल होर इनू सौखा करते हैं, पहला इनू पैटर्न लिख लो, जां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ फिर 8 आएगा, फिर ये एंड कितना करेगा, फिर ये बच्चों एंड करना है 4 दे नाल, क्योंकि 2 दूनी 4 8 8 64, तो कितना आ गया 64 ਵਿੱਚ भी 4 ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, उस तो बाद ਜਾਂ फिर 3 और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7। ठीक है, और लिख लेना इत्थे 3 और 7 ਤੇ 3 3 9 7 7 49 9 आ गया ना।
ठीक है। उस तो बाद अगला हैगा 4 और 6, ठीक है। 4 चुके 16, 6 छीगा 36, 6 आई गल समझ। उस तो बाद नैक्सट हैगा 5, जेकर वंस प्लेस से 5 होएगा तो 5 5 25, 5 ना एंड करेगा। ओके 5 नाल वो एंड करेगा। कोई भी नंबर दे विच अगर वंस प्लेस से 1 ਜਾਂ 9 है वो 1 ना एंड करेगा, 2 ਜਾਂ 4 8 है 4 ना एंड करेगा, 3 ਜਾਂ 7 है 9 ना एंड करेगा, 4 ਜਾਂ 6 है 6 ना एंड करेगा, 5 है तो 5 नाल ही एंड करेगा, 0 है तो 0 नाल ही एंड करेगा, 0 है तो 0 नाल ही एंड करेगा। आओ पैटर्न ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਹੈਗਾ, ठीक है। जिथे 1 है देखो 1 कितना एंड कर रहा 1 आ, जे 2 आ तो 4 नाल, 3 आ तो 9 नाल, 4 आ तो 6 दे नाल, ठीक है। उस बाद 5 आ तो 5 दे नाल, 6 आ तो 6 दे नाल, ठीक है। 7 आ तो 9 दे नाल, देखो 7 और 3 का आपां इकट्ठा लिखिया सी, 8 आ तो 4 दे नाल, 2 और 8 का इकट्ठा लिखिया सी, 9 आ तो 81 1 दे नाल, तो 9 और 1 का इकट्ठा लिखा सी, तो 0 आता फिर 0 नाल ही एंड करेगा। तो ये पैटर्न समझने पैने तुहानू। ओके क्लीयर। 6 है ये की है कि अगर तुहाडे को 2 कंसैक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। कंसैक्यूटिव नंबर का मतलब पहला समझ लो की हुंदा है। कंसैक्यूटिव नंबर का मतलब हुंदा है जिद्दां कि मेरे को 1 है, 1 तो अगला नंबर किहड़ा होया 2, ठीक है। जेकर मेरे को नंबर है 2 तो 2 तो अगला नंबर किहड़ा होया 3। कंसैक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, अगला नंबर। ओके उन्होंने कंसैक्यूटिव वर्ड आप लिखते हैं, तो कंसैक्यूटिव मीनस होता है लगातार संख्यावां। तो 2 लगातार संख्यावां है ना, एक अगर एक आ तो दूसरी 2 हो गई, अगर एक 2 आ तो दूसरी 3 हो जानी, इदी अगर एक 4 है तो दूसरी किहड़ी होगी 5। लग गया पता। तो ये लगातार संख्यावां हो गई। हुण असीं इन्हां कंसैक्यूटिव नंबर्स का पहला तो वर्ग करांगे, फिर असीं पैटर्न देखांगे की हो रहा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वर्ग, एक का वर्ग एक ही आना, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब है स्केयर, 2 का स्केयर कितना हो गया 4। तो 1 और 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 2 ਤੇ 3, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ठीक है। इदां ही ਹੁਣ अगला देखियो, अगले ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, अगले ਵਿੱਚ 2 है, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ कितना हो गया 2 × 2 कितना हो गया जी 4, ਤੇ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ कितना होएगा 9, ठीक है। मैं 9 ਇੱਥੇ ले देना। ਹੁਣ 4 5 6 7 8 और 9, ਤੇ 4 और 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ 4 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, 5 6 7 ਤੇ 8। ओके इदां ही ਹੁਣ ਹੈਗਾ 4 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੂੰਗੇ 16, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 25, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ਤੇ 25। ਹੁਣ ਗਿਣੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ 8, ठीक है। 8 ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ 8, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 1 ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ, ठीक है। अगर इनू मैं n मान ला और इनू मान ला n+1, इदां आ हो गया ना, n आ ते आ n प्लस कितना हो गया एक ज़्यादा उतों, अगर ये n की वैल्यू 4 आ तो n+1 कितना होएगा 5। ओके ठीक है। तो जनरलाइज केस करता आपां, तो 2 संख्यावां लईआं किहड़ी एक n ते दूसरी 2n। तो तुसीं ध्यान नाल देखो कि ਜਿਹੜੀ नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही ने इन बिटवीन ऑफ ए स्केयर ऑफ 2 कंसैक्यूटिव नंबर्स, वो पहली संख्या का डबल है। देखो इत्थे 2 आ, 2 किहदा डबल आ 1 का, दुगना हो गया ਉਹਦਾ, ठीक है। इत्थे 2 आ पहली संख्या तो ਇਹਦਾ डबल कितना है 4, इत्थे की है 4, तो 4 का डबल कितना हो गया 16, नहीं सॉरी 8, ठीक है। 4 का डबल मैं स्केयर कहता, 4 का डबल जिहड़ा है वो कितना हो गया 8, ठीक है। तो 4 दूनी कितने हो गए 8। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 नंबर ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ कि इन्हां 2 कंसैक्यूटिव नंबर दे वर्गां दे विचकार किन्नियां संख्यावां होणगीਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 1, 1 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, तो 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, ठीक है। 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4, ਤੇ 4 ਕਿਹਦਾ ਡਬਲ ਹੈ 2 ਦਾ। 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 8 ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, 8 ਕਿਹਦਾ ਡਬਲ ਹੈ 4 ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ओके तो क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर्टी बन गई कि देयर आर 2n नंबर नेचुरल नंबर्स बिटवीन दी
2n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2n ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਟੂ ਕੰਸੈਕੂਟਿਵ ਨੰਬਰਸ that is n and n plus 1 ठीक है। तो ये ऑर्डर है पैटर्न होंगे आ ये असीं याद रखने आ तुहानूं जदों क्वेश्चन आना पेपर 'च फटाफट तुसीं आंसर दे देना इहदा जेकर तुहानूं टॉपिक पता होगा भी हाँ भी इदां सीगा ठीक है। तो उहदे लई की आ हुण तुहानूं मैं नंबर आ कोई भी नंबर लै लो दो कंसैक्यूटिव जिहदा 11 दा स्केयर ते 12 दा स्केयर दे विचकार जिहड़ियां ने ओह किन्नियां नंबर किन्नियां संख्यावां होणगीਆਂ 121 तुहानूं पता 11 दा स्केयर हुंदा ते 12 दा स्केयर हुंदा 144 ठीक है। हुण तुसीं गिणन थोड़ी पै जाओगे भी नहीं है तुसीं सौखा काम करना जिहड़ा छोटा नंबर है उहदा की करता डबल तो किन्नियां होणगीਆਂ इत्थे 22 संख्यावां आ जाणीਆਂ 22 नंबर आ जाने। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਲਿਆ कि 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ 8 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 तो इत्थे 16 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ठीक है हो गया सौखा ओके। अगली प्रॉपर्टी है साडे को 7th स्केयर ऑफ a number can be expressed in as a sum of the first n odd natural numbers प्यारे विद्यार्थियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी एक पैटर्न है जे तुसीं ध्यान नाल समझो मैं पैटर्न लिखदा चलो पैटर्न आपां लिखदे फिर समझदे इहदे बारे। साडे को पहले देखो फर्स्ट n नैचुरल नंबर की गल हुई असीं पहले दो नैचुरल नंबर का जोड़ करदे किहदे बराबर आना 4 दे ते 4 किहदा वर्ग हुंदा जी 2 दा ते किन्नियां संख्यावां ने 2 उस तो बाद आ जाओ हुण 1 जमा 3 जमा 5 ये ऑड नंबर आ गए इन्हां दा सम देखो किन्ना आ रहा 5 जमा 3 8 8 जमा 1 9 9 किहदा वर्ग हुंदा जी 9 किहदा वर्ग हुंदा 3 दा ठीक है 3 दा वर्ग किन्ना हुंदा है 9 किन्नियां संख्यावां ये 3 ठीक है इत्थे किन्नियां सी 2 ठीक है। उस तो बाद अगे ले लो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 किन्नियां संख्यावां देखो किन्नियां ने 4 तो हुण तुहानूं आंसर देने की लोड़ है इत्थे इहदा जोड़ करन दी तुसीं की करना 4 संख्यावां 4 दा वर्ग कर दो किन्ना आ गया 16 कर लो जोड़ इहदा लगा पता ठीक है। हुण तुहानूं पुछ लिया 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 इन्हां दा वर्ग करना है जी इन्हां दा स्केयर करना तो स्केयर करन लगे हुण तुसीं सॉरी ऐड करना इन्हां नूं ठीक है। तो इन्हां नूं अगर ऐड करना तो ऐड करन लगे तुसीं इन्हां नूं कल्ले कल्ले नूं थोड़ी ऐड करोगे तुसीं की नंबर गिणने किन्ने आ 1 2 3 4 5 पंजू 5 25 25 इहदा आंसर जी ठीक है। देखो बन गया पैटर्न ना 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 ठीक है सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दो किन्नी संख्या 1 2 3 4 5 6 6 छिका 36 तो आंसर कितना आया 36 ठीक है। तो पैटर्न देखो तो क्वेश्चन की टॉपिक की प्रॉपर्टी की होगी स्केयर ऑफ नंबर n ठीक है स्केयर ऑफ ए नंबर n जेकर कोई संख्या है तो उसका स्केयर जिहड़ा है उन्होंने सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नैचुरल नंबर विच दर्शाया जा सकता है। पंजाबी विच बोल देना कि अगर तुहाडे को किसी संख्या का वर्ग जिहड़ा है ठीक है किसी संख्या का वर्ग जिहड़ा है उन्होंने पहलियां जिन्नी भी संख्या है उन्नियां ऑड नंबर्स दे स्केयर सम के रूप दे विच तुसीं उहनूं दर्शा सकते हो जिद्दां कि हुण मैं एक उल्ट तरीके नाल इहनूं आपां करन दी कोशिश करदे हां तुहानूं आ गया जी 49 ठीक है किन्ना आ गया 49 जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ऑड नंबर सम ऑफ ऑड नंबर विच दर्शाना है तो ਤੁਸੀਂ करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता 49 वर्ग है किहदा 7 ਦਾ 7 ਦਾ तो 7 ਦਾ वर्ग 7 ਦਾ स्केयर जिहड़ा 49 अगर हुंदा है तो 7 पहलियां ऑड नंबर दे सम दे विच लिख दो इहनूं 1 जमा 3 जमा 5 जमा किन्ना आ गया 7 किन्नियां हो गईयां 4 फिर उस तो बाद किन्ना आ गया 9 ते लास्ट विच किन्ना आ गया 11 जोड़ लो 1 जमा 3 किन्ना हो गया 4 4 जमा 5 किन्ने हो गए 9 9 जमा 7 किन्ने हो गए 16 16 ते 9 किन्ने हो गए 25 ठीक है किन्ने बने 1 2 3 4 5 6 एक हो रह गया उस तो बाद इहदे विच आ जाना 13 16 इत्थे तक 25 सीगे 25 जमा 11 किन्ने हो गए बच्चों ये हो गए 3 ते 36 36 दे विच 13 जोड़े किन्ने हो गए 49 हो गए 49 तो पहले 7 नंबर ठीक है। हुण तुहानूं पुछ लिया 81 दा स्केयर 81 दा स्केयर जिहड़ा है सॉरी 81 नूं ऑड नंबर सम ऑफ ऑड नंबर विच दर्शाओ तो 81 तुहानूं पता 9 दा वर्ग हुंदा है तो 9 नूं किद्दां लिख सकदे 9 संख्यावां हुण ऑड ले लो 1 3 5 7 9 11
13, ठीक है 13 तक तो हो ही गई, और 9 लिखनी आप, ये 7 हो गई 15 ਤੇ लास्ट ਵਿੱਚ 17, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੀ कितना होएगा 81 होएगा या 9 का स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्यावां बनदियां पईयां, ठीक है। तो ये सी प्रॉपर्टी नंबर 8 ते आ जाओ हुण। प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर एक्सेप्ट 1 नूं छड्ड के, ठीक है, कैन बी एक्सप्रैस एज सम ऑफ द टू कंसैक्यूटिव नैचुरल नंबर्स, ठीक है। ये मैं हुण फटाफट आपां कर लैने। इहदे विच की हैगा कि अगर तुहाडे कोल कोई भी ऑड नंबर है, जिद्दां 3 आ, 3 का स्केयर किहदे बराबर हुंदा है 9, ठीक है 9 के बराबर हुंदा, ते तुसीं 9 नूं किद्दां लिख सकदे 4 जमा 5, ये थोड़ा जिहा पैटर्न है। इस तो बाद 5 का स्केयर, ये भी ऑड नंबर ही है, 5 का स्केयर कितना हुंदा 25, तो 25 नूं आपां किद्दां लिख सकदे 12 जमा 13 25 के बराबर होंगे, ठीक है। इदां ही तुहाडे कोल 7 है, 7 का स्केयर जिहड़ा 49 हुंदा है, तो उहनूं असीं किद्दां लिख सकते हैं 24 प्लस 25, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बनता पिया, बाकी इहदे विच कोई इदां दा स्केयर नहीं है। इहदे लई फार्मूला ये हुंदा है, अगर n इहनूं n मानते हैं तो इहदे विच n स्केयर -1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस n स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला हुंदा है, ये पैटर्न हुंदा है, ओके जी। तो ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंगली ये वैल्यूज आंदियां ने, मतलब आ जनरलाइज केस है। इत्थे n की वैल्यू देखो 3 आ, ठीक है, पहले के केस दे 3 3 9, 9 दे विचों 1 माइनस किया कितना हो गया 8, 8 बटा 2 किन्ने हो गए 4, इदियां 3 3 9, 9 जमा 1 10, 10 बटा 2 किन्ने हो गए 5, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स साडी 9th प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसैक्यूटिव ईवन और ऑड नैचुरल नंबर्स। ते प्यारे विद्यार्थियों इसनूं असीं एक एग्जाम्पल राही समझते हाँ कि है दो लगातार जिस्त संख्यावां जां फिर टांग संख्यावां उन्हां दी गुणा। तो लगातार टांग संख्यावां किहड़ियां होईयां देखो, एक हो गई 5, मान लो एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी होएगी फिर 7 ही होई ना। इदां ही दूसरा है जेकर जिस्त की गल करिए एक 10 है तो दूसरी मान लो 12 है, ठीक है। तो 57 हुण किन्ने हुंदे ने देखो 35, ठीक है 57 किन्ने हुंदे ने 35, ते 35 नूं मैं की करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फार्मूला लगाना है सिंपल ਜਿਹੇ तरीके नाल। इस विच तुसीं की करोगे, इनू आपां किस तरीके नाल लिख सकते हैं, देखो जिहड़ा 5 है इनू असीं n-1 कंसीडर कर लीए और a n+1 कंसीडर कर लीए, तो फार्मूला दो कंसैक्यूटिव नंबर ये बने, ठीक है n-1 n+1, ठीक है। तो ये लिए विचों फार्मूला लगता है n स्केयर -1, तो n इत्थे कितना 6, 6 का स्केयर कितना हो गया 36, 36 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 35, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना पैना तुहानूं। इदां ये हैगा इहदे विच n-1 ये हो गया n+1 ये हो गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला की बनया n स्केयर -1, तो ये अगर तुसीं दोनों की गुणा करते हो तो 120 के बराबर आ रहा, तो इहनूं कर किद्दां सकदे आपां देखो इहदे विच 11 आएगा, तो 11 का स्केयर -1, 11 का स्केयर 121 हो गया, 121 माइनस 1 कितना हो गया 120, 120 इसका आंसर आएगा। तो दो कंसैक्यूटिव नंबर्स अगर होंगे, दो कंसैक्यूटिव किहड़े ऑड नंबर जां फिर ईवन नंबर, चाहे ऑड आ चाहे वो ईवन आ, असीं पहला ऑड की एग्जाम्पल ले ली फिर ईवन की एग्जाम्पल ले ली। इदां ही कोई होर एग्जाम्पल ले लो 14, 14 एक ऑड ईवन नंबर है, ये तो अगला ऑड ईवन किहड़ा होएगा, ये तो अगला ईवन होएगा 16, ठीक है। तो इसका आंसर किद्दां कढना तुसीं, इन्हां दे कह लो भी विचकार वाली वैल्यू, सिंपल जी जे मैं गल करां तो इन्हां दे विचकार वाली वैल्यू किहड़ी होई 14 ते 16 के विचकार वाली वैल्यू किहड़ी हुई 15, तुसीं 15 का वर्ग कर देना है, ठीक है, तो उहदे विचों एक माइनस कर देना। फार्मूला तो यही बनया ना 14 ते 15, ठीक है, कोई भी ले लो 7 और 8 है, नहीं 7 और 9 सॉरी, तो ये विचकार वाली वैल्यू किहड़ी है 8, 8 का वर्ग 64, 64 माइनस 1 कितना हो गया 63, तो 70 नाम कितने होंगे बच्चों 63 ही होंगे ना, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप इदा कर सकते हुण 14 ते 16 के वर्ग, अगर 14 ते 16 की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो आंसर कितना आना 14 ते 15, 14 ते 16 के विचकार 15 आ गया, 15 का वर्ग करो -1, तो 225 माइनस 1 कितना हो गया 224 के बराबर आएगा, समझ गए। तो ये 224 जिहड़ा आंसर होगा, फाइन जी। तो दिस इज सम प्रॉपर्टी नंबर 9 ते हुण असीं करन जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। तो एक ही है डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसैक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दी सम ऑफ बोथ नंबर्स, सम ऑफ
बोथ नंबर। तो सब तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ दो लगातार प्राकृतिक संख्यावां ਦੇ वर्ग ਦਾ अंतर, दो लगातार प्राकृतिक संख्यावां ਦੇ वर्ग ਦਾ अंतर, ठीक है। तो सम ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ देखो पहला समझो नो, सम सॉरी डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी बोथ नंबर्स, ठीक है। दो लगातार प्राकृतिक संख्या दे वर्गां दा अंतर, ठीक है। अंतर का मतलब होंदा है डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो एग्जाम्पल लैने इहदे विच साडे कोल 5 का स्केयर ते 4 का स्केयर, ठीक है। तो 5 का स्केयर कितना हो गया 25, 4 का स्केयर कितना हो गया 16। तो ये बच्चों आंसर कितना होना है 9, ठीक है। तो 9 नूं असीं किदां लिख सकते हैं 4 + 5 के रूप दे विच, ठीक है। 4 + 5 के रूप दे विच आपां लिख सकते हैं, ठीक है। इदां ही तुहाडे कोल मान लो 10 का स्केयर है -9 का स्केयर है, ओके। तो 10 का स्केयर कितना होंदा है देखो 100 और 9 का स्केयर होंदा 81। तो इसका आंसर कितना आ गया 19। तो 19 किहदे बराबर आया 10 + 9 के बराबर, ठीक है। 10 + 9 के बराबर। तो यदा मतलब इत्थे फार्मूला एक सिंपल जिहा अगर आप फार्मूला याद रखिए a² - b² जो कि बराबर होंदा a + b a - b, ठीक है। तो a का स्केयर a इत्थे 10 मान लिया सी और b जिहड़ा हैगा 9 है, लगातार संख्यावां दे वर्गां दा डिफरेंस, ठीक है। तो इहदे विच की करना तुसीं देखो 10 जमा 9 तो इत्थे कितना आना 10 - 9, ठीक है। तो जो 10 जमा 9 करोगे 19 आ जाएगा, 10 - 9 करोगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 19, यानी कि 1 दे 19 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके ना करना, मतलब कि अगर तुहानू कोई भी वैल्यू आती है जिदा 25 सॉरी एक मिनट एग्जाम्पल लैने असीं 6 का स्केयर ते 5 का स्केयर लगातार है, तो इसका आंसर की आना सिर्फ तुसीं 6 ते 5 नूं ऐड कर देना तो तुहाडा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल। तो ये प्रॉपर्टीज आ, ये हुण प्रॉपर्टीज तुसीं याद रखणियां ने। 11वीं प्रॉपर्टी है स्केयर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जिदा -1 का स्केयर करूंगे तो एक कितना होगा -1 × -1, माइनस ना माइनस कट गई, आंसर कितना आना 1 जो कि है पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव यानी कि जिहड़ी ऋणात्मक संख्या हुंदी है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा की है धनात्मक संख्या हुंदी है, याद रखना है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है द स्केयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लैस दैन दी गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। कि मान लो तुहाडे कोल जिद्दां हुण 2/3 है, इहदा स्केयर करोगे तो 4/9 आना, ठीक है। तो इहदे विच 2/3 जिहड़ा है वो वड्डा है तो 4/9 जिहड़ा है वो छोटा होएगा, ठीक है। सो इस तरीके नाल बच्चों ये जिहड़ा क्वेश्चन सीगा असीं करना सीगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सी। तो ये तुहाडीआं टोटल 12 प्रॉपर्टीज हो गईआं। 12 प्रॉपर्टीज नूं हुण तुसीं रिवाइज करना है बार-बार। ये मैनूं लगदा इहदे विच शायद तुहानूं डाउट होवे की हैगा। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किहड़ी हुंदी है जिस विच पहली गल हर वड्डा होवे ते अंश छोटा होवे। तो इहदा स्केयर कितना हो गया 4/9, ठीक है। 4/9 तो 4/9 जिहड़ा है ये वैल्यू 2/3 जिहड़ी नंबर हैगा ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ छोटी होएगी। किद्दां छोटी होएगी देखो इन्हां दे पहलां दे हर बराबर कर लो। ਇਹਦਾ हर बराबर करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 3 ना ऊपर मल्टीप्लाई 3 ना नीचे 3 दूनी 6 6/9 बन गई 6/9 4/9 तो की है वड्डी, ठीक है। तो जिहड़े संख्या का तुसीं वर्ग करदे हो प्रॉपर फ्रैक्शन का ते जिहड़ा आंसर आंदा है वो आंसर उस नंबर तो वड्डा होएगा, अब छोटा होएगा सॉरी, ठीक है। उस आंसर तो की होएगा छोटा। ओके जी, तो ये प्रॉपर्टीज कर लो। हुण अगली बार असीं करांगे इहदी एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है। उहदे नाल दे रिलेटेड क्वेश्चन होणगे। हुण सारे तुसीं कर ही लैणे आ, पहलां प्रॉपर्टीज आउणियां चाहीदियां सी तुहानूं। थैंक यू वेरी मच।